Hello, good evening, everyone. I hope you guys are doing well. So, yesterday we have done uses of shall and will. I hope you guys have understood everything that whatever we have learned by yesterday. So, today we are going to learn about how we can use has, have, and had, right? So, before giving the examples, I would like to tell you one thing, guys. Always you have to focus on more practice, right? Do not try to go in a deeper way of the grammar parts, because if you will try to go in a deeper way of the grammar part, so that means you are going to confuse yourself, right? If I am talking about myself, so I always focus on practice instead of giving a lot of time on grammar part. But grammar is a very important to make the sentences. But the second thing we have to remember always, whatever we are learning over here, and as I told you in the previous video, that we have to focus as much as we can on the practice, right? I know that is a very difficult for everyone, because since we born, we are not having a lot of environment where we can express ourselves, where we can talk with someone. So that's the thing, like there are two things what we have to understand, that internal environment and external environment, right? So what is the mean of internal environment? We need to create the environment inside our mind, right? Like for example, कि अगर हम यहाँ पे जो चीजें अभी सीख रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे, एंड एज वेल एज द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन एंड वी हैव डिस्कस्ड। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि जब तक हम अपने जुबान को खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, until we are not trying to open our mouth to speak in English, your English is never going to be improved, even though you have a lot of knowledge about the grammar parts, right? तो कहना यह है कि जो हमने पहले सीखा, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन दैट, try to make more sentences, try to speak in on that, like whatever we have learned earlier, whatever we are going to. So what we are going to do, like what we today we are learning about these things. So यहाँ पे सिर्फ समझना है, राइट? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि we have to focus on understanding in a proper way. Once you understand well, thing will be very easier for you to make the sentences with different kind of sentences. तो यहाँ पे हम पहला है has, have और had, right? तो had हम बेसिकली यूज करने वाले हैं, had we are going to use with past time, और हैज और हैव जो हम यूज करेंगे फॉर द प्रेजेंट टाइम, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला जो चीज हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी चीज प्रेजेंट में आपके पास में है, यानी यू आर ऑनर ऑफ एनी पार्टिकुलर थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो यहाँ पे हैज है, तो हैज जो है हम किसके साथ में लगाएंगे? सिर्फ समझना है बस. Try to focus more on understanding. Will thing will very easier for you to make the sentences, right? तो हैज लगाएंगे किसके साथ? He, she, it, singular name के साथ. So already we had a word about what is the singular and what is the plural. Those who did not watch the earlier video, so go and watch that video. You will understand in a proper way, right? तो यहाँ पे has हम किसके साथ में लगाएंगे? He, she, it, name, यानी singular person के साथ, right? मान लीजिए कि और यहाँ पे have हम किसके साथ में लगाएंगे? I, we, you, they के साथ. यानी we are talking about with the plural subject, we have to use have, we have to use has with the singular subject, right? तो पहले हम लोग प्रेजेंट का कवर अप करेंगे, देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू द हैड, यानी वी विल टॉक अबाउट द पास्ट टाइम. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हैव रिटन वन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, हैड प्लस नाउन. नाउन का मतलब तो यू गाइस नो ऑलरेडी, नाउन कोई भी नाम, कोई भी संज्ञा जो हो गया उसको हम नाउन बोलते हैं, राइट? अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास क्या है? एक पेन है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी हैव, राइट? हम लोग क्या बात करें कि मेरे पास में कुछ है, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज और हैव का, राइट? तो मेरे पास एक पेन है, तो क्या बन जाएगा? आई हैव अ पेन, राइट? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें ना तो क्या, ना तो नॉट, ना तो क्यों आता है. तो मैंने पहले बताया इसके पेन है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट. तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? सबसे पहले राम आ जाएगा, उसके बाद हैज आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद पेन आ जाएगा. तो ट्राई करना है बनाने का अपने अपने हिसाब से, कि मेरे पास एक गाड़ी है, राम और श्याम के पास बुक्स है, तो राम एंड श्याम हैव बुक्स.
आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, शी हैज अ मोबाइल। तो ये था प्रेजेंट में। अगर मान लीजिए कि इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन सेंटेंस में, तो क्वेश्चन सेंटेंस में अगर क्या से पहले आ जाएगा तो हम पहले लगा देंगे हैज और हैव। ठीक है, हैज राम आ पेन, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में हम क्या करेंगे, मेरे पास घर था। ठीक है, तो what we have to understand over here, like we are talking about something we had in the past time, right? जो हमारे पास कुछ पास्ट में था तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, I had a house, right? I had a house। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब खुद के पास के लिए कुछ बात करेंगे तो हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली हैड इस्तेमाल करेंगे पास्ट के लिए और ये इस्तेमाल होगा प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, राइट। प्रेजेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हैज, हैव, और पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे हैड हम। ठीक है, अब यही अगर रहता क्वेश्चन सेंटेंस, आई आ हाउस, करेक्ट। अब ये अगर डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा तो डब्ल्यूएच वर्ड में क्या बनेगा, हाउ हैड आई आ हाउस, करेक्ट। तो हम लोगों ने जो पहले वीडियोस में समझा था, ये हेल्पिंग वर्ब का भी यहाँ पे काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो है पास का सेंस दे रहा है, यानी कुछ पास में। लेकिन ये जब डब्ल्यूएच वर्ड होगा, क्वेश्चन होगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब की जैसे भी हम इसको यूज करेंगे, राइट। सो वी हैव डन ऑलरेडी प्रेजेंट एंड पास्ट, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर। तो बेसिकली हम जो सीख रहे हैं पास वाले, पास कोई भी चीज पास में होगा, तो अब ये जो है हम फ्यूचर का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। सब्जेक्ट है शैल, विल, हैव प्लस नाउन। तो यार यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी विल हैव इन द फ्यूचर, राइट। हमारे पास कुछ भविष्य में होगा तो हम उसके लिए शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली फ्यूचर के लिए हम सबके साथ हैव ही का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एग्जांपल दिया है, उसके पास एक घर होगा, राइट। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट समवन विल हैव समथिंग इन द फ्यूचर, राइट। तो कल जो है ये भविष्य में किसी के पास होता तो उसके पास एक घर होगा, तो शी विल हैव अ हाउस और ही विल हैव अ हाउस, राइट। दूसरा है मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक कार होगा, राइट। तो आई विल हैव अ कार, दे विल हैव अ कार। तो we can change the subject, no problem, whatever the subject you want to mention over here, no problem, you can go with that, right। तीसरा है हम लोगों के पास नौकरी होंगे, so we are talking about plural subject over here, right। तो यहां पे हम लोगों के साथ क्या हो जाएगा, we shall और we will have a job, करेक्ट, या we will have jobs। तो इसका अगर मेरे को मनाना है नेगेटिव, राइट। अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव में है कि उसके पास एक घर नहीं होगा, तो क्या बनेगा, शी विल नॉट हैव अ हाउस। मेरे पास एक कार नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव अ हाउस। विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे। अगर इसको हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे कि क्या मेरे पास एक घर होगा, तो हम बना देंगे, सबसे पहले विल आ जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आई, उसके बाद हैव आ जाएगा, हैव, उसके बाद व्हाटएवर द नाउन आर देयर वी कैन यूज, राइट। तो विल आई हैव अ हाउस, विल दे हैव अ कार, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर ये डब्ल्यूएच फैमिली में होगा फॉर एग्जांपल, तो क्या बनेगा, विल, हाउ विल दे हैव अ हाउस, हाउ शैल आई हैव अ कार। मतलब सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद जो भी नॉन आप लगा सकते हैं। तो ये सारा बनाया है मैंने। देखिए मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लेके जाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जस्ट यू गाइस अंडरस्टैंड द थिंग्स ओनली, राइट, एंड ट्राई टू यूटिलाइज ऑल दोस थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, व्हाटएवर वी आर लर्निंग, व्हाटएवर वी हैव लर्नड अर्लियर, try to use in your conversation these all and try to practice as much as you can, right। Now I am going to give you some sentences for make you make at home। I just give you more sentences, I will write you in Hindi and try to translate into English at your home, so you will understand very well। So I have written some sentences over here, try to make it at your home, once you make it you will understand very well, right। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ सेंटेंसेस दिया, आप कोशिश करें कि घर पे इसको प्रैक्टिस करने का। देखिए गाइस समझना ज्यादा है, एक चीज मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ आप लोगों को, देखिए ग्रामेटिकल का
टीचर्स आप लोगों को हर बहुत यूट्यूब्स पे मिल जाएंगे, राइट? पर मकसद बनाना है बोलने का। तो बोलने के लिए भी मैं जानता हूं कि फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश देयर देयर इज अ रिक्वायर ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज, राइट? So by doing this kind of things, I'm here to teach you the basic, intermediate and advanced level, right? थोड़ा सा फोकस रहिए, थोड़ा सा ये बेस जब कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल टीच यू हाउ यू कैन ओपन योर माउथ, how you can conversation with your partner, how you can communicate with anyone. So I will teach you each and every points, but once you have to understand now each and every points. If you're not understanding, if you're getting stuck somewhere, try to drop the message in the comment box, then I'll check the comment, like whatever the queries you have faced while making the translation or while understanding these kind of things. So let me know. I'll try to solve your problems whatever you are struggling, right? तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ इज देयर एनीथिंग एल्स लाइक आई हैव टू improve on, then you can write it also in the comment box. और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि in short period of time you can learn a lot of things. Thank you very much guys, thank you very much, have a good